Hello second class. Good morning. How are you? I know you all are fit and fine. Yes or no? Yes. And you have a lots of enjoy. Yes or no? Yes. So second class, कैसे हैं आप सब लोग? I know सब लोग बहुत अच्छे हैं. So students, welcome back to the video class at Little Angel School at home. And this is Poonam Bhati from Little Angel School. Students, every day you would be attended the video classes and learn about that topic which I discuss in this video class, right? So make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the video class, right? So students, please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Students, I hope you all are ready. Yes, you are very good students. So let's get start. Today we are going to cover the day 7 for your chapter number 4. आज हम डे 7 कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 के लिए. ओके राइट. दिस इज द लेंथी चैप्टर, इसलिए कुछ डेज में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया है. तो लेट्स स्टार्ट विद डे 7 फॉर चैप्टर नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, this is your chapter number 4 and chapter name is working of a computer, right? Day 4, day 5 and day 6 we already covered the input devices in this chapter. Okay, in this chapter your computer textbook has been covered lots of topic. I will see you in the next slide ki which topic will be covered and which topic we already finished. Okay, working of a computer, that means how your computer works on, which devices are used for working of a computer. Okay, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि हम कैसे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और कि क्या क्या डिवाइसेस हम इस कंप्यूटर यूज़ करते हैं वर्किंग के लिए. आपको पता है विदाउट डिवाइसेस हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, राइट? सो वी ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट डिवाइस, दैट इज़ द इनपुट डिवाइस. सो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट दीज 3 टॉपिक्स इन फॉर योर चैप्टर नंबर 4. हमने चैप्टर नंबर 4 में ये कुछ लर्न करने हैं. ऑलरेडी वी फिनिश द 2 टॉपिक्स लाइक द इनपुट प्रोसेस आउटपुट वी ऑलरेडी फिनिश्ड एंड वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर वी ऑलरेडी फिनिश्ड. ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट? इन द थर्ड टॉपिक डिवाइसेस we finished, basically we use the 4 devices like input devices, output devices, processing devices and the storage devices for your computer, right? So we already finished the first device, that is called the input device. हम आपकी लास्ट वीडियो क्लासेस में इनपुट डिवाइसेस फिनिश कर चुके थे. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज कॉल्ड द processing device, right? So student, this is our first topic. Today topic is that is the processing device. Today's first topic is the processing device. So anyone tell me that what is processing device, because I already told you about the processing device in the last video classes. हमने last video classes में मैंने आपको processing devices के बारे में कुछ एक लाइन में थोड़ा सा बताया था, डिटेल में नहीं लेकिन एक लाइन में मैंने बताया था. Yes, so processing device are those device which is used to process your input. ठीक है, जो आपको कंप्यूटर के अंदर आपकी इनपुट को प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस. नाउ इन दिस स्लाइड स्टूडेंट्स यू हैव टू सी 3 पिक्चर्स. फर्स्ट इज CPU फ्रंट, second is CPU inside and third is CPU back. You have to see 3 pictures, first, second and third. Now you already know about the CPU, that is CPU is look like that, ठीक है, in front and CPU look like that in back. ठीक है, बैक साइड में CPU आपका इस तरीके से दिखता है और इन फ्रंट में आपका CPU इस तरीके से दिखता है. बट इनसाइड CPU your CPU look like that.
ठीक है। आपका जो इनसाइड CPU के अंदर जो होता है वो आपका CPU इस तरीके से कुछ दिखता है। दिस इज द 3 पिक्चर फॉर CPU। CPU फ्रंट से दिखता है कैसा, CPU बैक से इस तरीके से दिखता है, CPU इनसाइड, CPU अंदर से कैसा दिखता है। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइस इन डिटेल। वर्किंग ऑन इनपुट्स और डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो भी हमने अपना इनपुट इंसर्ट कराया है, एंटर कराया है कीबोर्ड और माउस के थ्रू और इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जो भी हमने इनपुट और डेटा एंटर कराया है आपके कंप्यूटर में, उस इनपुट और डेटा पर हम वर्किंग करते हैं, वो हमारी होती है प्रोसेसिंग। ठीक है। नाउ processing device is used for processing your input is called the processing device। ठीक है। प्रोसेसिंग वो होती है जो आपके इनपुट एंड डेटा पर वर्किंग होती है, और उस प्रोसेसिंग को जो डिवाइस फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। राइट, क्लियर। नाउ CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आपकी कंप्यूटर में सबसे जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो होती है आपकी CPU, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग आर डन बाय द CPU, ईच एंड एवरीथिंग आर स्टोर्ड इन द CPU। ठीक है। तो जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट एंटर करा रहे हैं, जो भी आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट को प्रोसेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई कमांड दे रहे हैं, तो वो सारी CPU के थ्रू ही प्रोसेस्ड होती है। सपोज इफ़ यू वांट टू सी ए पिक्चर और इफ़ यू वांट टू डू ए पेंटिंग इन योर कंप्यूटर, ऑन योर कंप्यूटर, देन you give the command, then CPU understand that command which you give, ठीक है, then CPU start the working with a paint application, ठीक है, and you draw your picture, you can draw your picture on your computer with the help of CPU, right? It has a processor that process the input, right? CPU क्या है? डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, ठीक है, जो आपकी इनपुट को प्रोसेस करती है, राइट। बट बेसिकली व्हाट इज दिस? इट इज़ ए प्रोसेसर। क्या होता है ये? प्रोसेसर, राइट। दैट प्रोसेस द इनपुट, जो आपकी इनपुट को प्रोसेस करता है, दैट प्रोसेस द इनपुट, right? So this is all about the CPU which your computer textbook has been covered. So in this slide you have to see that working on input or data is called processing. CPU is the processing device of a computer. It has a processor that processes the input. So students, this is enough for today's video, ठीक है। In the next video we will discuss about the CPU, what is the CPU, ठीक है। In the next video we will discuss about the CPU and we also discuss about the storage devices। हम storage devices और CPU के डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, राइट। सो इट्स टाइम टू होमवर्क। You have to learn about these processing device which your computer textbook has been covered, ठीक है। आपको प्रोसेसिंग डिवाइस लर्न करनी है जो आपके कंप्यूटर टेक्स्ट बुक के अंदर है, ठीक है। नाउ CPU के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में, राइट। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ठीक है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए एंड सुरक्षित रहिए, खूब सारा एंजॉय करिए, लेकिन साथ में मिलकर जमकर पढ़ाई भी करनी है, राइट। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।